जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, પ્રેમનું અમૃત પાવું છે, પ્રેમનું અમૃત પાવું છે, રાધાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા ભજન રડમની લાગી, દાદા ભજન રડમને લાગે, ભક્તિ રસમાં નાવું છે, ભક્તિ રસમાં નાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, ભવસાગર નૈયા મારી ડોલે, ભવસાગર નૈયા મારી ડોલે, સામે કિનારે મારે જાવું છે, સામે કિનારે મારે જાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, જીવન મારું બન્યું વકારો, જીવન મારું બન્યું વકારો, દાદા ચરણમાં રહેવું છે, દાદા ચરણમાં રહેવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને, દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને, જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે, જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી, દાદા વિતરાગી દીક્ષા પામી, દાદા જેવું મારે થાવું છે, દાદા જેવું મારે થાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, પ્રેમનું અમૃત પાવું છે, પ્રેમનું અમૃત પાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
Okay, quickly. Now Kalamo. Okay, दो आदमी है तो 1 2 3 4. Okay, Monica. हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ ધ્યેયધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના દુબે ના દુબાય કે દુબવા પ્રત્યેના અનુમુદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધ્યેયધારી જીવાત્માનો કિંચિત માત્ર પણ અહમ ના દુબે એવી સ્યાદ્વાદ વાણી, સ્યાદ્વાદ વર્તન અને સ્યાદ્વાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. Number 2. Chinai. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પરમાન ન દુબે ન દુબાય કે દુબા પ્રત્યેના અનુમુદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. મને કોઈ પણ ધર્મનો કિંચિત માત્ર પણ પરમાન ન દુબે એવી સ્યાદ્વાદ વાણી, સ્યાદ્વાદ વર્તન અને સ્યાદ્વાદ મનન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. Okay, number 3, Tirth. આજે સચ્ચિદાનંદ હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેવધારી ઉપદેશક સાધુ સાધ્વી કે આચાર્યનો અણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરવાની પરમ શક્તિ આપો. Navnidhi, number 4. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા પ્રત્યે કિંચિત માત્ર પણ અભાવ, તિરસ્કાર ક્યારેય પણ ન કરાવાય કે કર્તા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. Tirth, number 5. આજે સચ્ચિદાનંદ હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેવધારી જીવાત્મા હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેવધારી જીવાત્મા સાથે ક્યારે પણ કઠોર ભાષા તંત્રની ભાષા ન બોલાય, ન બોલાવાય કે બોલવા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. કોઈ કઠોર ભાષા તંત્રની ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવા પરમ શક્તિ આપો. Chinai, number 6. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ ધ્યેયધારી જીવાત્મા કે પ્રતિ સ્ત્રી, પુરુષ યા નપુંસક ગમે તે લિંગધારી હોય તો તેના સંબંધમાં કિંચિત માત્ર પણ વિષય વિકાર સંબંધી દોષો, इच्छाओं, चेष्टाओं या विचार संबंधी दोषों न किया जाए, न करवाया जाए कि कर्ता के प्रति अनुमोदाय एवी शक्ति आपो. મને નિરંતર નિર્વિકાર રહેવાની પરમ શક્તિ આપો. Tirth, number 7. આજે સચ્ચિદાનંદ હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પર અસ્માલુદ્ધપણું ન કરાય એવી શક્તિ આપો. સમરસી ખોરાક લેવાય એવી પરમ શક્તિ આપો. Number 8, Navnidhi. હે દાદા ભગવાન, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્માનો પ્રત્યક્ષ અગર પરોક્ષ, જીવંત અગર મૃત્યુ પામેલાનો કોઈનો કિંચિત માત્ર પણ અવર્ણવાદ, અપરાધ, અવિનય ન કરાય, ન કરાવાય કે કર્તા પ્રત્યે ન અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. Number 9, Chinai. હે દાદા ભગવાન, મને જગત કલ્યાણ કરવાનો નિમિત્ત બનવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ દાદા. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો. નમો બોલો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. વિતરાગાય. નમો અરિહંતાનમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુનમ. એસો પંચન મુક્કારો. સૌવપાવપણાસનમ. મંગલાણં ચ સૌવેસિમ. પડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય.
ओम ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके चिनाय। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी लालच मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन कार्य का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का माटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपनी माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। नवनीत जी। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं या अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि मेरे दर्शनों पर के आवरण टूट जाएं और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तीर्थ। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा दादा भगवान, भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हम हैं हैं आपके आपके बच्चे, बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के दिल हैं के हैं सच्चे, सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी फिर है भी कच्चे। हैं कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम काम करेंगे करेंगे अच्छे अच्छे। जय ओके। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नवनीत दीदी हिंदी। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप अलग हैं, नवनिधि अलग है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप रियल हैं, नवनिधि रिलेटिव है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट हैं, नवनिधि टेम्पररी है। गुजराती चिनाय। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, મોનિકા જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, મોનિકા રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, મોનિકા ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। ओके, अभी शेषदादा थोड़ा होमवर्क देखेंगे। जी। तो आज सत्साधन में कितना क्या पॉजिटिव था और गुरु जी को यस नो कैसे। ओके चिनाय। जय सच्चिदानंद। आज मैंने प्रसादन 10 out of 25 है। आज मैं थोड़ा लेट उठी थी क्योंकि मैं कल थोड़ा लेट सोई थी, और आज मैंने गुरु मम्मी को 4 बार यस कहा था और 1 बार नो अंदर से हो गया। जब मम्मी ने मुझे कचरा काटने के लिए कहा तो मेरे अंदर एकदम से नहीं, मैं नहीं करूंगी ऐसा आया, बट मैंने बाहर हाँ ही कहा था। बट मम्मी समझ गए तो उन्होंने खुद ही वो काम कर दिया। और गुरु पापा के साथ आज मैं 3 बार हाँ की थी और उन्हें नो नहीं कहा था। छोटी बहन। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैं सत्साधन नहीं किए थे और मैंने आज किसी को भी नो नहीं बोला था। तो आपने खाना खाया था? हाँ। तो सत्साधन क्यों नहीं किया? जब सत्साधन नहीं करते तो खाने का बंद कर देने का, तो तुरंत हो जाएगा। और आप 3 घंटा एक्स्ट्रा स्टडीज करते, क्या किया आपने 3 घंटा? तमिल। कौन सा सब्जेक्ट?
तमिल 3 कलाक 3 घंटा तमिल। हाँ तो अभी एक्सपर्ट बन गया तमिल। खुशी आपने तो रिपोर्ट भी नहीं भेजा। इंडिपेंडेंट खुशी हो गई तो रिपोर्ट भी नहीं आता है। अभी क्या हो गया है? नहीं, वो पापा ने एक काम बता दिया तो फिर सत्संग का टाइम हो गया इसलिए नहीं भेजी। पापा पे करने का तो टाइम नहीं मिलता है। ओके बोलो, आपका रिपोर्ट बोलो। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने 23 आउट ऑफ 25 किया था। मैंने आज नमस्कार विधि और दादा नासिम जयकार नहीं किया, और मैंने गुरु मम्मी को 2 टाइम्स हाँ बोला था और ना एक बार बोल दिया था। गुरु पापा को 1 टाइम हाँ बोला था। क्यों मम्मी पापा को ना क्यों बोला था? मम्मी को ही बोला था। मम्मी ने कहा मैं करती हूँ पापा का काम, तो मैंने कहा नहीं, मैं कर दूंगी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने 6 में से 5 ही सत्संग किए थे। नमस्कार विधि और दादा भगवान के कार नहीं किए थे। और आज मैंने पापा को और मम्मी को मैंने आज 6 बार हाँ कहा था और 2 बार ना कहा। एक भी बार ना नहीं कहा था। और पापा को मैंने आज एक भी बार हाँ भी नहीं कहा था और ना भी नहीं कहा, और जबकि पापा यहाँ नहीं थे इसलिए। मम्मी को क्यों ना बोला था? नहीं कहा था, मैं तो वो भूल से बोल गया। हाँ नहीं कहा था ना। ओके। नवनीत दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मेरे सत्साधन कंप्लीट हुए थे और मैंने सबको यस कहा था। 21 स्टार है आज अभी तक। ओके दक्ष। हाँ, आज मैंने सत्साधन किए थे। बस मैंने दादा भगवान की असीम जय का नहीं करी थी और मैंने मेरी गुरु मम्मी को हाँ बोला था। ओके, आपने असीम जय किया आज? अभी करूंगा किसके साथ करेंगे आप? मम्मी के साथ। ओके वेरी गुड। देव। आज मेरे सारे सत्साधन हुए थे और आज मैंने किसी को नो नहीं बोला था, लेकिन थोड़ा ऐसा व्यवहार कर लिया था कि मतलब नो बोल दूं पापा के साथ। पापा के साथ नो बोला था? नहीं, मतलब ऐसा कर दिया था। पहले उन्होंने कहा कि अभी मेरे साथ चल, और फिर तब मेरा उनके साथ काम करवाना था, तो उन्होंने कहा कि तू काम मत करवा, तू अपना पढ़ाई का ले ले। तो पहले मैंने ना कहा और फिर अपने खुद से लेके फिर उनके साथ चला गया। ओके वेरी गुड। अव्यय, कितना दिन से आप किधर था? वो एग्जाम आ रही थी तो एग्जाम की तैयारी में। एग्जाम हो गई? नहीं, अभी 2 एग्जाम ही हुई। हाँ एग्जाम हो गई? अभी 2 एग्जाम ही हुई है। अभी आप कौन सा स्टैंडर्ड में है? मेरा है ना मैथ्स हो रहा है। आप कौन सा स्टैंडर्ड में है? मैं 6 में से ज्यादा एग्जाम आती है तो सत्संग नहीं कर। वो क्या होता है? बातें करो बच्चे लोग को। अभी ये कितना घंटा पढ़ाई करते थे? लगभग 4-5 घंटे। और बाकी का समय? बाकी का समय दूसरे सब्जेक्ट में लेता था। हाँ, तो सब मिला के कितने घंटे पढ़ाई करते थे, वही तो पूछ रहा हूँ। सब मिला के 6 घंटे। ठीक। फिर मैं थोड़ी देर खेलने जाता था। हाँ, तो खेलने जाते थे, वो अच्छी बात है, गलत नहीं है, पर वो चेंज ओवर चाहिए ना वो आपको। तो सत्संग में 10 मिनट आ जाते तो वो चेंज ओवर मिलता अच्छे ढंग से। और एक रिचार्ज मिनट हो भूल जाता। गया, कितना टीवी देखते हैं एवरीडे?
टीवी 1.5 hour। अच्छा, एग्जाम है तो भी देखा? हाँ हाँ कि ना? हाँ हाँ, तो एग्जाम है तो टीवी देखने का यदि आपको समय मिलता है तो फिर सत्संग तो टीवी से ज्यादा फायदे कारक है। ज्यादा आपको आनंद भी देगा, एनर्जी भी देगा, ऊपर भी ले जाएगा, एग्जाम में भी मदद करेगा। तो आपके प्रायोरिटी लिस्ट में कौन सा चुनना चाहिए? चलो ठीक है, आपने 6 घंटा नहीं 8 घंटा भी पढ़ाई कर लिया, बाकी के घंटे 8 घंटा सो लिया, 16 घंटा, 1 घंटा खाने का, 17 घंटा, तो ये 5-6 घंटे बच गए अभी तो टाइम टेबल में। तो उसमें से आधा घंटा मुंह दिखाते, सबको दर्शन देते हम सबको तो चलो अभी सोचना। हाँ, अक्षय भाई से मैथमेटिक्स और टाइम टेबल ठीक ढंग से समझ लेना, ठीक है ना? खेलने की ना नहीं है, सब कुछ करो, मगर अपने फायदे में क्या है उसका लिस्ट तो होना चाहिए ना अपने पास। हाँ, नहीं तो सब मन और समय, मन समय चुरा लेगा और चीजों में, और समय तो चला जाएगा। हाँ। जो समय का श्रेष्ठ उपयोग करता है वही मनुष्य जीवन में सफल और आगे बढ़ता है। और आपको तो दोनों में आगे बढ़ना है ना, व्यवहार और आत्मा दोनों में, कि एक में? दोनों में। हाँ, चलो आगे आगे बात करें। जिसको बात करनी है आप बोल सकते हैं हाथ उठा के। एक मिनट, हम प्रेक्षा अनम्यूट कीजिए। आपने पापा मम्मी दादा दादी को कितना हाँ बोला, कितना ना बोला? प्रेक्षा सबको। सबको ना बोला कि हाँ बोला? हाँ। ओ वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। और अभी विधि दीदी के पास सब आपको त्रिमंत्र आता है? यस। दूसरा 9 कलम आते हैं? ओके, तो विधि दीदी को पूछ के सब पक्का करने का है। ओके ओके ओके। और किसको क्वेश्चन है? ओके, मोनिका दीदी। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाती हूँ। वो पहले नवंबर को 3 days हॉलीडेज थी, तो उस दिन मैं लेटली उठी थी 9 o'clock जैसे। तो तब से मैं जल्दी उठ ही नहीं पा रही हूँ, कितनी भी कोशिश करूँ आलस आ जाती है, और उसकी वजह से मेरा सत्साधन और सुपर ब्रेन योगा छूट जाता है। कितने बजे सो जाते हो? 10:30 या फिर 10:50 कभी कभार। हाँ, तो 10:30 को सो गए तो अच्छी बात है। तो अंदर सूचना देने की कि हे दादा भगवान, आप क्या नाम बताया आपका? भूल मोनिका। जाते। मोनिका, तीनों के नाम में मेरा अदल बदल हो जाता है। तो आप बोलना कि हे दादा भगवान, ये मोनिका को सुबह 5 बजे या 5:30 बजे, जो भी आप कहते हैं, उठा दीजिएगा और मोनिका उठ जाएगी। और अंदर शुद्धात्मा दादा भगवान की हाजिरी में बोलेंगे तो फिर ये धीरे धीरे करेगी। और दूसरा ये है कि अलार्म भी लगा सकते हैं, मगर मोनिका बोले कि अभी सोने दो, तो आपको मोनिका से बोलना है कि नहीं मोनिका, ऐसा नहीं, चलिए उठिए, बहुत आनंद करेंगे, हम अच्छे काम करेंगे। पूरी कितनी जिंदगी सोने में बितानी है? 8 घंटा तो बहुत हो गया। तो 10:30 बजे आप सो गए, 7 घंटा 8 घंटा तो बहुत हो गया, ठीक है ना? हाँ, मैं निश्चय करती हूँ और अलार्म भी लगाती हूँ जब नहीं, सुबह। देखो देखो, निश्चय आप करते हैं कि मोनिका से करवाते हैं? मैं करवाती हूँ। हाँ, करवाओ और मोनिका से बात करो। और हाँ। और लोगों की बात मोनिका जी जल्दी नहीं सुनेंगे, मगर आप शुद्धात्मा दादा भगवान की हाजिरी में मोनिका से बात करोगे कि मोनिका ऐसा नहीं, ये आप दादा भगवान की हाजिरी में
प्रार्थना करते हैं और आप उठना, और हम दादा भगवान से बोलते हैं कि मोनिका को उठाना, तो उठ जाएगी मोनिका। 1-2 दिन आलस करेगी, फिर तीसरे दिन नहीं करेगी। हाँ और वो उठेगी तो सुबह का समय तो बहुत बढ़िया होता है, ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। तो 4:30 से 6:30 का समय तो बहुत प्रेशियस समय होता है। उसमें जो भी काम करते हैं उसमें चित्त इतना अच्छा होता है कि उसका बहुत श्रेष्ठ फल मिलता है। और वैसे भी सूर्य नारायण, सूर्य, इतने बड़े सूर्य भगवान उठ के चले आए। बाद में हम उठे तो दादा भगवान हम लोगों से हंसते थे कि आप कितने बड़े महान हैं कि सूर्य देव आ गए फिर भी आप उठते नहीं। ऐसा दादाजी हमारे साथ मस्ती करते थे लोगों के साथ कि भाई आप तो कितने बड़े सूर्य देव के बाद में उठते हैं। तो ऐसा बोलना। और शाम का खाना कितने बजे खाते हैं आप? कभी कभार 9:30 सत्संग के बाद, और या फिर 8:30 को हो जाता है पहले। नहीं, वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है तो करिए, मम्मी से थोड़ा सा एडजस्टमेंट करवा के कि भाई सुबह शाम का खाना हो सके उतना थोड़ा जल्दी खा लेना है। यदि आप 7:30 8, एटलीस्ट 8 से पहले 7 7:30 को खाएंगे तो सुबह में जल्दी उठ पाएंगे। जितना लेट खाना खाओगे सुबह में उठने में दिक्कत आएगी। हाँ, बट मेरा स्कूल का टाइमिंग 5 o'clock है, तो मैं 6:30 को, मेरा स्कूल का टाइमिंग 5 o'clock को छोड़ते हैं, तो मैं घर आके 6:30 को खाती हूँ। बाद में मुझे 9:30 को फिर से मिलता है। फिर भूख लगती है। अच्छा, 2 बार खाना खाते हो तो फिर नींद ज्यादा आएगी। तो 9:30 को भूख लगती है तो ऐसा करो, 8:30 को थोड़ा सा लाइट ले लो, ज्यादा नहीं। अपने खाना तो खाया तो फिर, मेरे कहने का मतलब एक ही है कि देरी से जितना खाना खाते हैं सुबह उठने में मुश्किल होती है। एक चीज वो है, दूसरा चीज अपनी निश्चय और प्रकृति है। तो दो में आपको थोड़ा सा चेंज आवश्यक है। और ये तो 1-2 बार नहीं देंगे 9:30 को तो वो समझ जाएगी प्रकृति को, अभी 9:30 को नहीं मिलने वाला है। नहीं तो देते रहेंगे तो वो तो रात को 12 बजे भी मांगेगी कि अभी भजिया चाहिए यार, बहुत भूख लगी। आदत तो जैसी बनाएंगे ऐसी बनेगी। आमतौर पे तो भगवान ने तो ऐसा बोला है कि सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए, मगर वो तो हम चलो अभी नहीं करते हैं, पर बहुत देरी से खाना खाना ठीक नहीं है, शारीरिक और मानसिक और आत्मिक तीनों पहलुओं से। ठीक। हाँ। ओके प्रेक्षा, आप क्या बताते हैं हमको? प्रेक्षा, प्रेक्षा क्या बताते हैं हमको? वो चैप्टर 7 ओवर फूड। ओके ओके। देव, देव आपको क्वेश्चन है ना? हाँ आप बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा ये क्वेश्चन था कि मतलब मम्मी ने ना मेरे को कहा है कि तू अपना टाइम टेबल है ना खुद से बना ले, मतलब कि पूरे दिन का टाइम टेबल मेरे को खुद से बनाना है। तो अभी मैंने बना तो दिया है, लेकिन मैंने टीवी का टाइम और मोबाइल का टाइम भी रखा है और पढ़ने का टाइम भी रखा है। तो अब मैं पहले टीवी देखता हूँ स्कूल से आने के बाद 1 बजे के बाद, और फिर शाम को मेरा पढ़ने का टाइम होता है। तो फिर मम्मी और वो कहते हैं कि मतलब पढ़ ले, उसके बाद जितना तेरा टाइम होगा उसमें तेरे को मोबाइल मिलेगा। लेकिन फिर ऐसा होता है कि मैं पढ़ लेता हूँ लेकिन मिलता नहीं है, तो मेरे को ऐसा होता है कि मतलब क्यों नहीं देते। और फिर ये ऐसे यस आप वो काम बताएंगे ना तो ऐसा होगा कि नो ही कर दो, उन्होंने मेरे को मोबाइल नहीं दिया था। पूरे दिन में कितने टाइम मोबाइल देखते हो आप? नहीं, टीवी का और मोबाइल का दोनों का होके दोनों का टाइम 1.5 घंटा रखा है और पढ़ने का टाइम 2 आवर्स। टीवी का कितना समय और मोबाइल का कितना समय? टीवी का 1.5 घंटा और मोबाइल का भी।
1.5 घंटा, 3 घंटा टोटल? हाँ वो तो गलत बात है, वो तो मैं भी मंजूर नहीं करूंगा। आपके मम्मी पापा की क्या बात है, मैं भी उसको अलाउ नहीं करता। 3 नहीं, लेकिन घंटे? इतना सारा भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, 3 घंटा टाइम, पढ़ने का टाइम 2 घंटा और टीवी मोबाइल का 3 घंटा, ये तो कोई रेशियो है क्या? वो मतलब कि आपके पास इतना सारा टाइम कहाँ से आ गया? तो आधा घंटा ठीक है भाई, आधा घंटा टीवी देख लिया तो ओके भाई, वहां तक अलाउड है, उससे ज्यादा नहीं। और मोबाइल में क्या करते हो आप? मैं कई बार यूट्यूब में शॉर्ट्स देखता हूँ ज्यादातर। क्या क्या? यूट्यूब में शॉर्ट्स देखता हूँ, रील शॉर्ट? रील क्या रील। रील मैंने क्या? मतलब कि ऐसे यूट्यूब में जैसे बड़े बड़े वीडियोस आते हैं, वैसे थोड़े 1 मिनट न्यूज? शॉर्ट्स। ठीक है, एक चीज तो ये है कि आपका चित्त कितना उसमें यूज होता है, आपकी चित्त की शक्तियां कितनी जाती है और आपका समय कितना जाता है, और उसमें से क्या मिलता है आपको, प्रोडक्शन या लाभ क्या है? सिर्फ मुफ्त में समय आया इसलिए गंवाने के लिए? समय मुफ्त होता ही नहीं है। टाइम इज अ वेरी प्रेशियस एसेट। कहावत है ना, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नोबडी। और आपकी क्लास में कितनी रैंक आती है? टॉप है ये क्या? बस बस 2-3 में? नहीं, कहाँ पर है आपका, कौन सा, वो क्या ग्रेड देते हैं, क्या देते हैं? हमें परसेंटेज होते हैं, लेकिन हाँ। वैसे तो मैं अभी सेवन्थ और 8th में थोड़ा रिजल्ट डाउन हो गया है। वैसे क्यों? 7th के फर्स्ट सेम में टॉप 10 में था। और अभी अभी डाउन होके कहाँ चला गया? पहले मेरे 89 तक होते थे, अब डायरेक्ट 70 में हो गया परसेंटेज। हाँ, तो 20% कम हो गया, तो क्या वजह तो ढूंढो है। ये चीत और ये टीवी और मोबाइल तो खा खा जाएंगे, आपकी कैरियर को खा जाएंगे, तो फिर कहाँ से लाओगे आप? तो आप खुद को बोलो कि पहले 89+1 90% लाके दिखाओ, फिर टीवी मोबाइल की बात करेंगे। सेल्फ को ही आपको सेल्फ रेगुलेट करना है ना। मम्मी हाँ, पापा कहाँ तक करेंगे, और मम्मी पापा का तो सुनेंगे भी नहीं आप जल्दी। आप खुद ही खुद को मॉनिटर करो कि भाई क्यों 89 से 70 हो गया। आप ही बोलो क्यों हो गया, आपको तो मालूम होगा। हाँ, मैं ऐसा मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था मेरे को ये और 7th। और और ओवर कॉन्फिडेंस के अलावा क्या हुआ? हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने पढ़ाई नहीं की थी इसलिए तो ज्यादा। फिर आप भी जानते हो, आपके पास ही है निदान तो रोग का, तो दवाई भी आपके पास होनी चाहिए। अभी आप ही बताओ क्या करोगे तो 89-90 वापिस होगा, आप ही बोलो। अभी ऐसा किया है कि ये जो यूनिट टेस्ट और वैसा होता है ना, अभी मतलब कि मैंने कहा तो मुझे मिलता तो नहीं है, लेकिन अब जितना होगा उतना अवॉइड करूंगा ऐसा। हाँ, बिल्कुल मोबाइल नहीं मिलता, एक भी मिनट नहीं? ना, वैसे तो मिलता है, लेकिन तो फिर मतलब कहा है आधा घंटा और फिर 15-15 मिनट कहते हैं और ऐसे ले लेते हैं, तो तो ले थोड़ा ही वो। लेंगे ना, पर आपके परसेंटेज नहीं आते तो ले, लेकिन आपके आपके माता पिता की जगह मैं होता तो मैं तो देता ही नहीं, कि नहीं पहले परसेंटेज लाके दिखाओ फिर दूसरी बात करें हम। मैंने कहने का मतलब ये है, आपके मन को समझाओ कि समय इंपॉर्टेंट है, चित्त तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्त जितना इसमें जाएगा ना टीवी और मोबाइल में, तो पढ़ने की किताब में भी वही दिखेगा सब, चित्त पढ़ाई में लगेगा ही नहीं। आप लोग वो नहीं समझते हो कि चित्त जो बिगड़ता है उसको कौन साफ करेगा। जिसमें जिसमें चित्त जाता है उसका इंप्रेशन पड़ता है चित्त के ऊपर, और फिर आप पढ़ाई करने बैठते हो, उस समय चित्त पढ़ाई में होता है कि वही दिखाता है चित्त? नहीं, पढ़ाई में नहीं रहता है चित तो ज्यादा। फिर ये बात महत्व की है, ये समझना बहुत आवश्यक है कि जितनी चीज में चित गया उसका दाग चित के ऊपर रहते हैं, और दाग कोई साफ नहीं कर पाएंगे। मैंने ओवर कॉन्फिडेंस आता है तो क्या करूँ? अभी कह सकता हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो मैं अब नहीं करूंगा,
लेकिन जब एग्जाम्स आती है तब ऐसा ही होता है कि मुझे आता है, मुझे आता है, तो वो अवॉइड यार करने के लिए तो उसको बोलने का कि अभी एग्जाम में मार्क नहीं आया तो मेरे जैसा कठोर कोई नहीं आपके साथ, आप ही आपके साथ बात करो खुद अंदर से। आपको फिर खाने की पसंद वाली चीज छोड़ देनी पड़ेगी। मार्क्स नहीं आए, वो ओवर कॉन्फिडेंस में गए तो एक एक आइटम पसंद वाली छुड़वाता जाऊंगा। हाँ हाँ, उसको सेल्फ क्रिटिक बोलते हैं। जो खुद ही खुद को के प्रति तटस्थ होते हैं वही आगे बढ़ते हैं। बाकी वाही वाही तो अंदर से बहुत होता है, पर रिजल्ट तो रिजल्ट तो बोलेगा ना। हाँ तो वाहवाही करने से हम हम हाँ हमें बहुत आता है, इससे क्या फायदा। अभी मुझे ऐसे ही वो हो तो रहा है। दुनिया बोलनी चाहिए कि इसको अच्छा आता है, खुद बोलने से क्या फर्क पड़ता है। जब दुनिया बोलेगी कि हाँ आपको बहुत अच्छा आता है, तब बात मानने की। मैं खुद ही बोलूं कि मैं अच्छा डॉक्टर, उसका कोई मतलब नहीं। जब मेरे पेशेंट बोले, दुनिया बोले कि आप अच्छे डॉक्टर है, तो उसका मतलब है। और दुनिया ऐसे वैसे नहीं बोलती है, वो तो बहुत कड़ी परीक्षा लेती है। ठीक है। हाँ तो हाँ, अभी थोड़ा संभल जाओ। नहीं, मुझे ऐसा होता है क्योंकि अब मेरे जब 60 में थे, मतलब कि 50 अब परसेंटेज आते थे, उसमें अब 32 34 ऐसे परसेंटेज हो गए, डायरेक्ट हाफ हो गए वही मतलब। मैं सब कुछ समझ गया हूं कि आपका ये क्यों बिगड़ा है। तो मैं शॉर्ट में बात कर लिया आपसे, सबसे बात करनी है ना हाँ कि भाई आपके समय को संभालो, आपके चित्त को संभालो, और हाँ सेल्फ डिसिप्लिन्ड होके स्टडी करिए या जो भी काम करना है करिए। नहीं तो जिंदगी चली जाएगी, वापस नहीं आएगी। एक बार आप निचली ग्रेड्स में चले गए तो आपको भी उत्साह नहीं होगा फिर आगे बढ़ने का, ऊपरी ग्रेड्स में आने का। बहुत नुकसान हो जाएगा। हाँ और दादाजी तो बोलते थे अपने मुंह पर तेज होना चाहिए। विद्या का तेज होता है, अपने खुद के चारित्र का तेज होता है। कितने के मुंह पर तेज है, तो पाउडर लगाते हैं तो भी सेल्फी अच्छी नहीं आती है। हंसते हैं सब मेरे पर, नवनीति हंसती है देखो। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सब कुछ। अंतर की समृद्धि होगी, विद्या की होगी, सिंसियरिटी की होगी, डिसिप्लिन की होगी, टाइमिंग की होगी, पंक्चुअलिटी की होगी, कैरेक्टर की होगी, तब जाके मुंह पर तेज होगा, समृद्धि दिखेगी, नहीं तो नहीं दिखेगी। हाँ चलो आगे बढ़े रजनी दादाजी। हाँ हाँ, ओके ओके। देव, आप डिसाइड करो क्या करने का है, और बड़े होके क्या करने का है, आपको कुछ सोचा? नहीं। तो वो भी सोचना पड़ेगा ना। डॉक्टर हाँ बनने का, इंजीनियर बनने का, कुछ तो बनने का है कि ऐसे आपके पापा के शॉप में जाने का है? नहीं। नहीं तो जहां भी जाना है, मेरा अनुभव तो मुझे ऐसा बोलता है कि जितना भी समय गंवाओगे, जितना भी चित्तवृत्ति वेस्ट करोगे, तो ये दुनिया में हम पीछे 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 जाते जाएंगे। और यदि दुनिया में आगे रहना है तो समय और चित्त का बहुत अच्छे ढंग से उपयोग करना पड़ेगा। चले आगे चले। ओके। आप अव्यय, अव्यय किधर है? अव्यय चला गया? अक्षय काका, ओ अव्यय, हाँ अभी सुना तेजस दादा क्या बोला? हाँ सुना। ये चीज तो मोबाइल, आई मीन ये मोबाइल और टीवी आपका चित्त को बहुत नुकसान करता है। वो तो बार बार दीपू दादा ने कितना बोला, वो फ्यूचर के लिए नहीं अच्छा होगा, वो जरा सोचने का होता है। और देव, अभी फाउंडेशन अच्छा नहीं होगा। ओके, फंडामेंटल मैथ्स में और साइंस में और कोई सा भी सब्जेक्ट में बाद में बहुत बहुत मुसीबत आएगी। अभी राइट शैलेश दादा? बहुत मुश्किल। जिसकी नींव अच्छी नहीं होती वो बिल्डिंग ही कहाँ से बनेगा, वो गिर जाएगा बिल्डिंग। तो अभी मेरा तो नींव नींव रखने का समय है।
मेरा 8 के फर्स्ट सेम में ऐसा ही हुआ, मैंने कहा वैसा। रजनी दादा ने कहा ना कि साइंस मैथ जैसे सब्जेक्ट में डायरेक्ट डाउन, तो मैं ऐसा ही हुआ, डायरेक्ट मतलब हाफ मार्क्स हो गए। तो बाद में आपको कुछ साइंस में जाना पड़े, कैसे जाएंगे? ध्यान रखा तो। हाँ, तो ये सब सोचो। आज आज तो शैलेश दादा ने सब बच्चे को बोला है, ओके, नोट आपको, देव को नहीं सब, हाँ जरा ध्यान रखना। ओके ओके ओके, जय सच्चिदानंद। उसी तरह।